ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، ڈاکٹر سلیم، ندیم اشرف اور افتخار اور بھی سارے جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، قریشی صاحبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، تمہاری جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں سے گزرو۔ کوئی اچھا برتن تمہارے سامنے پڑا ہوتا تھا، تم لوگوں کے سامنے میری مراد ہے، ضیاء الحق کے آنے کا پتہ چلتا تھا، تم لوگ برتن چھپا لیتے تھے کہ ضیاء الحق دیکھ نہ لے، خواجہ ضیاء دیکھ نہ لے۔ تو تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے کون لے اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء الحق کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ کیا تھی کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے، تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے طیش میں تھے۔ میں مولوی حبیب الرحمان نے میرا نام لے دیا، مولوی بٹلہ نے نقد اس کو ذلیل کر دیا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ تو پہلے راجہ افسر کا گروپ پر تم آ گئے، ڈاکٹر ندیم صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر روح اللہ صاحب اور مولوی افتخار صاحب اور مولوی ضیاء الحق صاحب اور مولوی خورشید صاحب اور چودھری رفیق صاحب اور نعیم شاہ صاحب اور حشمت صاحب ایک، اور یہ عمر فاروق کو تم نے استعمال کیا کہ مولوی صاحب کی جماعتوں کے ویزے بند کرواؤ، جاننے والا کوئی نہیں۔ مولوی بٹلہ کا بیان ہو رہا تھا کراچی، تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ 2000 میں مولوی ارشد گروپ آیا اور راجہ افسر، اس کی جگہ قریشی صاحبان آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد قریشی صاحبان بھی اسی ڈگر پہ، آپ لوگوں کا گروپ دونوں سے بازی لے جا چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، کیا کلیئر ہے جی؟ اب اور صاف آ رہی جی۔ اچھا، تو وہ عرض کرنی تھی کہ یہ 98 کی بات ہے، 98 سے 99 کی یہ بات ہے، تقریباً 17-18 سال۔ تو جب ان شورا والوں نے پکڑا، جا کے حاجی عبدالوہاب صاحب کو بتایا، جس کے متکلم بنے بھائی جمین صاحب، بھائی شبیر صاحب، بھائی لطیف صاحب، اور جا کے حاجی صاحب کو بتایا کہ یہ شورا نے 4 مہینے کی محنت کر کے یہ ہیں بھائی مسعود زمان صاحب، مولوی ضیاء الحق صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور مولوی عبدالرحمان صاحب، یہ لوگ ہیں جو امریکہ کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اس نتیجے پہنچے ہیں۔ 3 فائلیں انہوں نے اٹھا کے حاجی صاحب کو بتائی، جو انہوں نے معلومات بھیجی تھی وایا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، رائبن سے، کیونکہ ان کا ایکسیس تھا وہاں رائبن کے اندر، ٹیلی فون کے ذریعے، اس کو انٹرنیٹ کا کمپیوٹر لگا، اس کے ذریعے سے بھیجتے رہے۔ تو وہ انہوں نے حاجی صاحب کو بتایا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اور اس کے بعد ملزم شاہد صاحب کو بتایا۔ تو مفتی صاحب نے تو فرمایا کہ ان کو 1 دن کے لیے بھی نہیں رکھنا رائے گا۔ ملزم شاہد صاحب نے فرمایا کہ بھائی جی ان کو بالکل نہیں رکھنا۔ اس کو پھر حاجی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگ ایسا کریں، ان کو 1 سال کے بعد ملکوں میں بھیج دیں، اور یہ جو 4-5 آدمی ہیں، جس میں مولوی الحق ہے، ڈاکٹر سلیم ہے، اور یہ جو جس میں یہ بھی تھے یمین صاحب بھی، تو ان کو 4-5 سال کے 1 سال کے بعد بھیجیں، اور جیسے واپس آئیں تو پھر ان کو اپنے گھروں میں بھیجیں۔ یہ مقیمین تھے رائبن کے۔ تو وہ تو آپ آزاد کے سامنے آئی ہوگی کہ ایک عالمی شورا بنی۔ میں انڈیا والوں کی اس وقت بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں، جو ہم نے اپنے سامنے سارا ہوتا ہوا دیکھا، جو ہمارے سامنے پروف ہیں، ثبوت ہیں، پیپر میں بھی اور زبان کے اور گواہان بھی ہیں بڑوں میں سے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے کہا جمیل صاحب کو بتا دیا کہ یار مول صاحب یہ ہوا ہے،
और ये पकड़े गए हैं। मैं आपको मना करता था उस कमरे में आप जाके न सोते, उसमें एयर कंडीशन वगैरह था तो आप जाके सो जाते हैं। 1 घंटा मैं मौला जमीन साहब समझाता रहा, मैं मौलवी यूनुस कि आप जो है मेहरबानी करके इस कमरे में न सोया करें, ये उनके लिए काम करें, आप भी बदनाम हो जाएंगे। चल नहीं 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 मेरी नहीं मान। फिर जब ये पकड़े गए तो फिर मैं आता जमीन साहब से कहा ये पकड़े गए, अब सूरज ने पकड़ लिया बकायदा, तो अब मेहरबानी करके अपने आप को इनसे ला ढका लें। तो उन्होंने फौरन जाके मसीह जमान जो उनके जिम्मेदार थे जो पाकिस्तान की सूरह में थे उनको जाके बताया तुम पकड़े गए, अपना संभाला करो। मैंने मोहतरम जमीन साहब से पूछा कि अमर जमशेद साहब को, मैंने मोहतरम जमीन साहब से पूछा मोहतरम आपने मसीह जमान को जाके बता दिए? उनसे कि नहीं मैंने वहाँ से क्यों जाके फैसलाबाद जाके किया था, वैसे मिलकर नहीं बताया। मैं कहा पता नहीं आपको इतना सीरियस मसला आपने उनको जाके बता दिया। खैर मुझे जमशेद साहब को पता लगा तो बहुत गुस्से हो गए, कल से दूध पीता बच्चा है, ये बच्चा है, क्यों इसने जाके सारा कुछ बता दिया, क्यों? खैर वो तो बड़ों की बातें जो हुई। तो फिर जो है वो जाके आई साहब के पाँव में पड़ गए कि हम आपके साथी हैं, 24 साल के साथी हैं, हमें न निकालें, ये न करें, वो न करें, बहुत कुछ लंबे चौड़े। आई साहब बड़े नरम दिन हाजी अब्दुल वहाब साहब, उन्होंने उनको कहा कि सबको कहा कि तुम लोग इनके ऊपर निगाह रखो और इनको नीचे लेके चल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुनाफिकीन को पास रखते तो चलो अपने पास रखो, इनको बाहर न भेजो। तो अब वो जो पकड़े गए थे लोग, तो वो जो पकड़े, अब इसके सबूत में आपको ये लोग क्या काम करते थे? क्या काम करते हैं? हाँ ये करते थे कि जितनी 2 काम किए इन्होंने। एक तो ये किया कि पैसों के इस्तेमाल करके कुछ उलमा को मदरसे वालों को साथ मिलाया। पैसों का इस्तेमाल करके मदरसे वाले उलमा, जो रायवन का मदरसा है उसके उलमा को साथ मिलाया। हाँ। एक दूसरा, जो रायवन में मालूमात पूरी दुनिया से खतूत आते थे वो सारे भेजे, और सारी मुल्कों में जो जमातें जाती थी, ये सारे प्रूफ आपके सामने आ जाएंगे, आपको मैं आस्ता आस्ता करके मेल करता जाऊंगा। तो जो जमातें बाहर मुल्कों में भेजते थे, वहाँ उनको कहते थे सारे हालात लेके और परफॉर्मेंस लेके, और एक आदमी कहता है कि एक उसकी डिटेल लेके, और वो सारी डिटेल बाई इंटरनेट के जरिए वो जो अमेरिका की वो जो यूनिवर्सिटी है उधर भेज देते थे। तो वो तकरीबन 50,000 पेपर गए कितने 6-7 साल के अंदर। अच्छा, ये दूसरी बात समझ में आई, और पहली बात समझ में नहीं आई कि रायवन के मदरसे के असातिज़ा को अपने साथ किया, उसका मतलब क्या? उसका मकसद ये हुआ कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे साथी थे रायवन के जो हाजी साहब की जगह पे अमीर बनना चाहते थे। ठीक है जी, क्योंकि हाजी साहब को जिम्मेदार पाकिस्तान का बनाया था, उससे पहले वालिद साहब जिम्मेदार थे। जब मौजूद ने उनको हमारे से हटा के हाजी अब्दुल वहाब साहब को बनाया, तो उस पे ऊपर वो गिर गए कि नहीं ये हमारा हक है और हमारे वालिद साहब को क्यों हटाया। और फिर ये भी कहना शुरू किया, वो बात बीमार पड़ गए, तो मौलवी फारूक साहब जो मक्के वाले हैं उनको भी कहा कि भाई मेरे वालिद साहब के कातिल तो हाजी अब्दुल वहाब साहब हैं, क्योंकि उनको मौजूद ने अमीर बना दिया, हमारे वालिद साहब को हटा दिया, इस दुख की वजह से वो फौत हो गए। तो उसके बाद वो के मदरसे के जिम्मेदार थे, असल तो मौलाना जमशेद साहब थे और मौलाना जुमान साहब थे, लेकिन अंदर खाना उन्होंने अपने इनकी इस चाहत को इस्तेमाल करते हुए इनको आगे ले आए। यानी कितना परवरिश की, यहाँ से शुरू की ना, क्योंकि उनकी चाहत से अमीर बनूं और ऐसा को नीचे दिखाऊं। ठीक है, और मैं आप सारे इन चीजों के मोहतरम आपके पास सबूत आएंगे, आपको लिखे हुए मिलेंगे, ये नहीं है। और इंशाल्लाह आप कहेंगे तो पाकिस्तान से भी काल हो गया। मुसीबत यह है कि साहब इसको कैद है, नहीं तो कुछ नज़म ऐसा बनाया जाता कि आपको उन तक अक्सर मिल जाती कि हाँ जी ये बातें जो भी ये बता रहे हैं ये सही है या नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सारी सूरत कहेगी कि ये बातें सही है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये जब पकड़े गए और इसके बाद उन्हीं लोगों ने, अब कैसे हुआ ये, यहाँ पे मैं एक चीज को रोक रहा हूँ कि ये हुआ, ये लोग पकड़े गए। अब जब ये लोग पकड़े गए, इस वक्त आपने सुना होगा कि आलमी शूरा पाकिस्तान के अंदर बनी है जी, तो और जिसमें कुछ इंडिया के साथी है, कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं। ठीक है जी। लेकिन
जो हजरात हमारे बड़े हजरात थे, मौलाना सईद खान साहब और मुफ्ती जैनुद्दीन साहब और मौलाना जितने इंडिया के बड़े हजरात थे, इन्होंने जब मौलाना हजरत जी के फौत होने के बाद 11 आदमी की शूरा बनाई थी, जिसमें से सारे फौत हो गए और मौलाना जुबैर साहब, मौलवी साहब और हाजी अब्दुल वहाब साहब, ये 3 रह गए। तो फिर मौलवी जुबैर साहब भी मतलब फौत रहमतुल्लाह जब फौत हो गए, तो उसके बाद इन्होंने ये 2 रह गए, एक मौलवी साहब रह गए, एक हाजी अब्दुल वहाब साहब रह गए। अब जब ये शूरा बनी है तो बनने के लिए उस वक्त जब ये शूरा बनी थी मौलाना अहमद हसन रहमतुल्लाह फौत होने के बाद, तो 3 दिन ये आजाद बैठे थे कमरा बंद करके। उसके बाद तय किया था कि शूरा से काम चलेगा, कोई अमीर नहीं होगा, शूरा से काम चलेगा। और ये 11 साथी 11 है, पर ये साथी जो है ये मकसद है पूरे आलमी मसले मदार होंगे, पाकिस्तान के भी थे, इंडिया के भी थे और बांग्लादेश के भी। तो ये चीज है वो। उसके बाद सारे फौत होते गए, आखिर में 2 रह गए, एक हाजी अब्दुल वहाब साहब और एक मौलवी साहब। ठीक है। अब हाजी अब्दुल वहाब साहब को अब बहुत ज्यादा, मैं आपको समझ नहीं आएगी लेकिन बहुत ज्यादा आपको सबूत मिल जाएंगे कि पिछले 10 साल से हाजी अब्दुल वहाब साहब कैद में हैं, उन लोगों के जो लोग पकड़े गए थे अमेरिकन और यहूद नसारा के लिए काम करने में। ठीक है जी। अब इसके जैसे आप कहेंगे, जितने आप सबूत कहेंगे हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचा देंगे। जैसे कहेंगे जिस तरह आप मुतमईन हो जाएंगे, हाँ भाई ये बात ठीक है। बड़ों से मतलब छोटे नहीं, पाकिस्तान की सूरत से और इंग्लैंड पाकिस्तान बड़ों से आपको 80-90% पाकिस्तानी की तबलीगियों से पता चल जाए कि हाँ ऐसा कह जाए। और 2-3 साल पहले उनको जहर भी दिया गया था, जिसके लिए वो 1 साल करीब 1-1.5 महीना अस्पताल में रहे। और ये वही लोग हैं जो उस वक्त पकड़े गए थे। अच्छा, पाकिस्तान के जो बंदे शूरा में डाले गए, वो आलमी शूरा जिसकी वजह से ये कहते हैं कि उसको भी इसमें डालें, ये जो है ये शूरा बनाए, ये आलमी शूरा बनाए। उसमें 3 वो आदमी हैं जो उस वक्त ये यहूद नसारा के लिए काम करते हुए पकड़े गए थे। एक मौलवी जालक साहब है, मौलवी अब्दुर्रहमान साहब हैं, ठीक है जी, और मौलवी अमन बटलर साहब हैं। ये जी अब जी सवाबी के हैं जी, ठीक है जी, पाकिस्तानी। ये 3 साथी पाकिस्तान के वो हैं जो पकड़े गए थे अमन के लिए काम करते हुए। अब कैसे पाकिस्तान, अब जब ये शूरा बनी है तो न उसमें हाजी अब्दुल वहाब साहब बैठे, न मौलाना साहब बैठे, न पाकिस्तान की शूरा बैठी, न बांग्लादेश की सारी शूरा बैठी। और इन्होंने उठा के खुद ही बना दिए कि ये आदमी हैं, ये आदमी इनको आदमी शूरा में ले आए। और हाई साहब तो क्यों क्या जाए जी आप साइन कर दें, या उनको इतना प्रेशराइज किया जी आप इसको दस्तखत कर दें। और उसके बाद मौलवी साहब के पास जब ले आए तो उनका भाई कोई मशरे में बैठे ही नहीं है, तो ये कैसे बना दी, किसने बना दी? जिसमें हाई साहब बैठे हो, न पाकिस्तान की शूरा बैठी है, न मौलवी साहब, न बांग्लादेश की शूरा बैठी है, तो ये कैसे बन गई जमात? ये कैसे बन गया, ये आलमी जमात कैसे बन गई? जब पहले जमात आज बहुत हुए थे तो उस वक्त तो सारे बुजुर्ग आके इंडिया में बैठ गए थे और 3 दिन मुसलसल बैठे रहे थे 10-15, और यहाँ कोई भी नहीं बैठा। और आके कहते हैं साइन कर दो, शूरा बन की साइन कर दो, शूरा कर। तो कुमार साहब को पता था कि ये वो 3 आदमी डाल दिए जो पहले आज से 15-20 साल पहले यहूद नसारा के काम करते हुए पकड़े गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा भाई ये कैसे बना दी। लेकिन पब्लिश में तो वहाँ सारे जमीन साहब भी थे जी, सारे जमीन साहब। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मेरा कितना उनके साथ ताल्लुक है, शायद ही किसी का हो। सबसे पहले मैं उनको घंटा समझाता रहा कि खुदा के लिए इनके साथ न बैठे, आप न बैठे, उनके कमरे में न बैठे। नहीं मेरी मानी, नहीं हमारी मानी। फिर जब पकड़े गए तो मैंने बताया कि मौलवी साहब ये शूरा वालों ने पकड़ा है, अब अल्लाह के लिए इनको आप इनके साथ न जोड़े, न इनके साथ बैठे। लेकिन क्या हुआ कि उन्हें जाके मैंने आपको बताया, मसीह जमान को जाके बता दिया, जो उनका मेन सरगना था कि तुम्हारे ऊपर ऐसे पकड़े गए, अपने आप को संभालो, बचाओ। क्योंकि वो मशरे के अंदर मसीह जमान मुस्तकिल कहता रहता था, हाजी साहब आप अपना को बदल बनाए, अपना को बदल बनाए, हमारे जमीन को अपना बदल बनाए। और हाजी साहब इसको नहीं मानते। इसलिए इस लाइन से उन्होंने हाजी से उन्होंने मोहताज जमील साहब को करीब किया, ठीक है जी, और मोहताज जमील साहब को इस्तेमाल किया।
हालांकि मैं मुल्ताज जमील साहब को जब इन लोगों ने निकाला था तो मैंने मक्के के अंदर 2-3 घंटे लगा कर उनको मेहनत करके मैं लेके आया था रायवेल के अंदर और मुकीम बनवाया था और फिर मशहर में बिठवाया था। तो फिर इन लोगों ने उनको निकाल दिया। तो मसला है कि मुल्ताज जमील साहब इस्तेमाल हो गए हैं। अब ये मैं नहीं कहता कि मतलब ये उनके काम, लेकिन ये इस्तेमाल हो गए हैं। और मैंने जब कहा था रायवेल आ जाओ तो मुझे कहते हैं चलने अफसर मैं आ तो जाऊँ, अगर ये मुझे मार मार के निकाल देंगे तो मैं क्या करूंगा वहाँ। क्योंकि फिर इन्हीं लोगों ने जो तलब इल्मों को खरीदा और जो उलमा को रायवेल पर खरीदा और जो ये आदमी के शूरा में डाले, इन्होंने कम अज कम 70-80 पाकिस्तान के शूरा वाले मुकीमीन और असातीन चेले वालों को रायवेल से पिछले 12-13 साल से मार मार के निकाल दिया है। ये सारे पेपर आपके पास आएंगे तो फिर आप जब मैं इसलिए मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ कि फिर जो है मुझसे आपकी ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं कहूँगा, मोटा मोटा बताऊंगा, तफसील आपके पास सारे पेपरों में आती जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद ये हुआ, एक तो ये मसला। दूसरा आपने सुना था कि पाकिस्तान के 95% रायवेल के पढ़े हुए उलमा ने तकरीबन 5 लाख यानी ये 5000 उलमा ने जो रायवेल की शाखों के उस्ताद है, क्या रायवेल के पढ़े हुए 5000 उलमा ने तकरीबन 3-4 लाख हाजियों से 3 खरब रुपया ले लिया मुसाफत के नाम पे। आपने सुनी तो होगी ये चीज, रोज अखबारों में आ रहा था, टीवी में आ रहा था, आपने ये तो सुनी होगी ना। नहीं, हमारे वहाँ ये खबर नहीं है। शेख मैं आपको पेपर भेजता हूँ, अखबारों की अखबारें और कितने उसमें से जेलों में पड़े हैं, वो सारे 95% लोग इस्तेमाल हुए हैं। मेरा ख्याल में मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं आपको फिर इंशाल्लाह मैं फिर आपको लिंक करता हूँ जरा, ठीक है। माफ करें मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे नजदीक आपके साथ सही चीज आनी जरूरी है। जी बेहतर है, मैं बहुत अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।